Hello, hi everyone. Welcome back to Classes Judicials. Today in this video we are going to discuss section 3, 4, 5, 6, 7 and 8. But moving further into the video, I would like to share, subscribe to my channel. Also click the bell icon. You can also connect me on Instagram by Classes Judicials. There I update everything. Whenever I come up with new video, I update over there. You'll get all the updates and you'll be updated with what content I'm going to come up. And I also do come live over there, teaching certain things, discussing certain aspects, declaring certain things. So please also do connect with me on that Instagram link. I have also shared the link of the Instagram in my description box. You can find it from there. So let's move further into the video. In the last video we have discussed the definition clause in the introduction part of the Sales of Goods Act, how it came into being force, what is the preamble, what does the preamble say, and what are the definitions, what do you mean by goods, what all things will be included in the term good. So now today in this video we are going to discuss further. So now what do you mean by sale and what do you mean by agreement to sell. सेल और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? सेल में क्या होता है? जब आप कोई भी चीज़ किसी को सेल करते हो तो वो सेल किस पे करते हो? ओनरशिप दे देते हो उसको और पोजेशन दे देते हो, और ये ओनरशिप और ये पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाती है एज सुन एज जो आपकी प्राइज मनी है. मतलब इधर उसने कंसिडरेशन जो है प्राइज मनी जो है वो दिया और इधर जो है पोजेशन ट्रांसफ़र हो गई. दैट इज सेल. एग्रीमेंट टू सेल में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो डिलेड होती है. या तो किसी कंडीशन की फुलफिलमेंट पे वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस करेगी, या किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस करेगी. बट इन दी सेल इट डजंट हैपन लाइक दिस. सेल के अंदर ओनरशिप और पोजेशन एज सुन एज सेलिंग और बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिनिश, तैसे के वैसे का वैसे ही तुरंत के तुरंत ही जो है पोजेशन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है. प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है. So when we talk about sale, let's just read section 4 before discussing further. So clause 1 says that a contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods. I'm repeating, property in goods का मतलब हुआ ओनरशिप और पोजेशन वो दोनों देने के लिए तैयार है. टू द बायर फॉर अ प्राइस. देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड द अदर. उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है कि अगर ये होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो कंडीशनल भी हो सकता है, कोई कंडीशन फुलफिल होने पे भी डिपेंडेंट हो सकता है. देन वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल. एज सुन एज ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी का फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. But where the transfer of property in goods is to take place, at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is said to be agreement to sell. Is it clear? The difference between sale and agreement to sell has already been discussed in the section 4 clause 3. And in the case of Shiodhan Singh versus Kuber Nath 1950 Allahabad High Court, the distinction between sale and agreement to sale was drawn. Moving further into clause 4, the agreement to sell becomes sale when the time lapses for the conditions are fulfilled, subject to which the property in goods is to be transferred. ठीक है, सेक्शन 4 समझ में आ गया. एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच का क्या डिफरेंस होता है, किस केस लॉ के अंदर ये डिफरेंस रिवील किया गया था, ये भी हमने देख लिया. डिफरेंस है क्या, अब ये भी बता देती हूँ. देखो, सेल ऑफ गुड्स में जो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है,
सेल में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है, तो हम उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो एग्जीक्यूट हो चुका है उसको एग्जीक्यूटेड कहते हैं, जो एग्जीक्यूट होना है उसको एग्जीक्यूटरी कहते हैं। सो इन दिस सेल ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बट एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। वो ओनरशिप जो है ऑन अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन विच हैज बीन प्लेस्ड, वो तब होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर राइट इन रेम होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर राइट इन पर्सोनम होता है। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम का मतलब द राइट अगेंस्ट द पर्सनल इंडिविजुअल। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर इनटू सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट होने की, वो एक तो फुलफिल होनी चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, सबसे पहले एक ऑफर रखेगा, फिर उस ऑफर को कोई जो सामने वाला पर्सन है वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, वो प्रॉमिस बनेगा। जब कंसिडरेशन आ जाएगी तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा। जब वो लीगल होगा, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जिस लीगल है, लीगल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और आपकी एज सही है, माइनॉरिटी में नहीं हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो, वो सारी कंडीशन सेक्शन 10 की जब फुलफिल हो जाएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वही वाली बात है यहाँ पे, यही बात कहता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर to buy or sell the goods at a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods, or it may describe the immediate payment of the price, or maybe both, or maybe it is for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. मतलब ये इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। Subject to provisions by any law for the time being in force, a contract of sale shall be made in writing. Contract of sale हमेशा writing में होगा या फिर word of mouth, इसमें ingredient special है, offer और acceptance होगा, फिर writing में होगा या oral होगा, express और implied। You can say वो express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है, by word of mouth भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आधा लिख लिया गया आधा orally किया, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ओरली किया, ऐसा भी हो सकता है कि आधे पैसे दिए आधे पैसे बाद में देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आधी इंस्टॉलमेंट दे दिया आधी इंस्टॉलमेंट बाद में होगी, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। सेक्शन 6 सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, गुड्स एग्जिस्टेंस में है, एक गुड्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, इनके बीच का क्या डिफरेंस है। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी either existing goods or owned or possessed by the seller or the future goods। किसी पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। उसके बाद देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ विच द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। देखो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं फ्यूचर गुड्स में हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ कि मुझे इस क्वालिटी के इतनी साइज के इतने लेंथ के पर्दे चाहिए। वो था एक इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरर, उसने ऑन ऑर्डर, उस वक्त उसके पास वो प्रोडक्ट जो है प्रेजेंट नहीं था, वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर्ड नहीं था। उसने सिर्फ उसको कपड़ा दिखाया, उसने बोला कि इतने से इतने साइज का होगा, विंडो का साइज ये होगा, चौड़ाई इतनी होगी, पर्दे की लंबाई इतनी होगी, पर्दे की कपड़ा ऐसा होगा, कलर ऐसा होगा, डिजाइन उसके अंदर ऐसा होगा, ऐसा फैब्रिक होगा। एवरीथिंग वाज डिक्लेयर्ड, बट देन द प्रोडक्ट वाज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। इट इज अ फ्यूचर गुड ऑन विच द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। सो देन किसी भी उसमें हो सकता है। तो जो गुड्स है वो एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, वो ओन्ड और पोजेस्ड उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास ना हो लेकिन आने वाले हों। ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स में होता है, जैसे कि अब हमारा फार्म लॉ आया है, उसमें क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
फार्मर्स और जो बिग कंपनीज हैं जो कि इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हाट दे विल डू, दे विल टेल द फार्मर दैट सी लुक, वी वांट दिस क्वालिटी of this produce, we will provide you this machinery, this many seeds, ये खाद प्रोवाइड की जाएगी, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. तो वो एक तरीके से क्या हुआ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा. समझ गए? अब आई होप यू कैन कनेक्ट नाउ. ठीक है. उसके अलावा अगर आप बात करो तो आगे बढ़ते हैं हम. तो देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन कंडीशन और कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन, बट वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell. फ्यूचर गुड्स के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्योंकि अभी कंडीशन तो पूरी फुलफिल हुई ही नहीं ना, गुड तो अभी आए ही नहीं ना, प्रेजेंस में है ही नहीं. तो जब तक वो प्रेजेंट में नहीं है, जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, अभी उसको आप डिलीवरेबल स्टेट में नहीं कह सकते हो, जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब तक वो एग्रीमेंट टू सेल होगा. एज सुन एज वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा वो सेल हो जाएगा. पोजेशन आपको मिल जाएगी तुरंत उसकी, वो सेल माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अब सेल हो जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made was perished or become so damaged that it no longer answer the description ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट. से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टमाटर की कैरेट के लिए. तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ए को नहीं पता था कि जिन टमाटरों के बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या बी को नहीं मालूम था जिस टमाटरों के बारे में वो अभी इस वक्त बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, पेरिशेबल स्टेट में है, या उनको अब आगे यूज नहीं कर सकते, हम वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसे डिलीवरी करें टू दी बायर. तो देन इन दैट केस वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा. देन द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 8, कॉन्ट्रैक्ट पेरिशिंग, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट एग्रीमेंट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल. ऐसा एक कंडीशन हो सकता है कि जब से फॉर एग्जांपल यही टमाटर वाला ले लो, टमाटर की कैरेट बात करी थी जब कि बिकनी है, जब उसने ऑफर दिया, उसने बात की इस बारे में, तो उस वक्त टमाटर की कैरेट ठीक थी, बुरी हालत में नहीं थी, डिलीवरेबल था उसका. ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था. लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब तक फॉर्मुलेट हुआ, सारी चीज़ें हुई, तब तक क्या हुआ, उसी बीच में वो इतना ज़्यादा सड़ गया, इतनी गर्मी पड़ी, इतना मे बी इतने ज़्यादा भुन गया हो गया जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया, पेरिशेबल हो गया. तो ये भी हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, एग्रीमेंट टू सेल के बाद और कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले कुछ गुड जो हैं वो पेरिशेबल हो जाएं. तो देन इन दैट कंडीशन द सब्सिक्वेंट गुड विदाउट एनी बायर्स बिकम सो डैमेज दैट इट नो लॉन्गर. तो जो रिस्क है वो पास हो जाता है टू दी बायर, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि कुछ कंडीशंस बाकी थी, लेकिन जो रिस्क है वो बायर के ऊपर है. उधर जो रिस्क था इन दी वेयर बाय दी गुड्स वॉज पेरिश बिफोर दी मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें जो रिस्क था वो सेलर के ऊपर था. अब जो रिस्क आएगा, इसमें जो रिस्क आएगा वो आएगा बायर के ऊपर. द रिस्क इज ऑन दी बायर नाउ. इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो तुरंत ही वॉइड हो गया सेक्शन 7 में. तो रिस्क का कोई चांस ही नहीं है. हाँ, एक तरीके से जो सेलर था उसको तो नुकसान हुआ ही हुआ, बट ऑब्वियस सी बात है. तो लेकिन जो रिस्क वाला एक फैक्टर होता है वो सेक्शन 8 के अंदर आया. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. आई विल बी कमिंग अप next with the next part of this particular sales of goods act, and there I'll discuss 11, 12, 13, 14, जिसमें कि हम कंडीशन और वारंटी के इलस्ट्रेशन के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे. Till then, bye bye, keep liking, sharing and subscribing to my channel.